Yes, good morning students. Let us begin with the exercise 6.5, which is the last exercise of chapter number 6. In this exercise, you are going to study about the property of a right angle triangle. ठीक है? It's a property of right angle triangle. जो हमारी right angle triangle कौन सी होती है? जिसमें हमारा any one of the angle is 90 degree. So it's the basically Pythagoras property which is given by a great philosopher Pythagoras. What he has said that in a right angle triangle, suppose this is a right angle triangle PQR and right angled at Q. In this right angle triangle, what Pythagoras said that the side opposite to the right angle, ठीक है, the side which is opposite to the right angle means जो right angle की opposite side है, सामने जो side है, तो इसके opposite side कौन सी है? This one. This is called as the hypotenuse of the right angle triangle. This is called as the hypotenuse of the right angle triangles, and the two sides, remaining sides, जो दो sides बचती हैं, they are called as the legs of the triangle. ठीक है, समझ में आया? In a right angle triangle, the side which is opposite to the right angle, opposite to the 90 degree angle, is called as your hypotenuse. You have to remember this name, that this side is always called as a hypotenuse in the right angle triangle, and the other two sides are the legs of the right angle triangle. And then what is the property says that the square of this hypotenuse, square पता है ना हमको, जैसे हम फाइंड करते हैं 3 का square, 9, 4 square, 16. So that square he is talking about, that square of side, square of the hypotenuse, that is PQ square, is equals to the square of sum of these two sides. Clear? So PQ square is equals to your PR square. Hypotenuse के square की बात हो रही है ना, it's PR. So PR square will be equals to PQ square plus QR square. Clear? Means whatever value will be there of PQ, PR and QR, you have to take a square of that value. ठीक है, उसका हम स्क्वायर लेंगे, एंड वो इक्वल किसके आना चाहिए? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल आना चाहिए दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के. क्लियर? समझ में आया? अभी देखो, इनको लेग्स बोला है ना इसने, बेसिकली हमारा ये हाइपोटेन्यूज होता है, एच से भी डिनोट करते हैं हम, एंड जिस पर राइट एंगल ऐसे बनता है, this is called as the base, ठीक है, and this is the perpendicular. Perpendicular जो 90 डिग्री बनाता है ना, बाइसेक्ट करता है, so this is the perpendicular. ठीक है, समझ में आया? दोनों legs के जो different name होते हैं, this is base and this is perpendicular, and this property you have to remember, that square of hypotenuse is equals to the sum of base and perpendicular. Clear? So students, I hope you have understood this. So now let us begin with the exercise 6.5.
see the question number 1 of your exercise. PQR is a triangle, right angle at P. What it is said, PQR is a triangle, right angle at P. मतलब right angle जो है आपका वो P वर्टेक्स पे बनेगा. तो हमने अपनी फिगर को इस तरह बनाना है PQR कि हमारा जो जब हम नेमिंग करेंगे ट्रायंगल की तो P पे राइट एंगल बने. अब राइट एंगल तो हमारा यहाँ बनता है ना, तो हमने इधर P दे दिया. क्लियर? PQR is a right angle triangle. If PQ is 10 centimeter, this PQ is 10 centimeter and PR is 24 centimeter. This is your PR 24 centimeter. Then find QR. You have to find QR. Means what do you have to find? You have to find the hypotenuse. Hypotenuse find करना है आपने. तो पहले जो गिवन है वो लिख लो. PQ equals to 10 centimeter. PR equals to 24 centimeter. So by Pythagoras property लगाओ. Pythagoras property. What it said that RQ square is equals to the sum of these two squares, PQ square plus RP square. अब वैल्यू पुट कर दो दोनों की. RQ square, RQ हमें फाइंड करना है. Put the value of PQ square. PQ is 10 square. RP is RQ और PR both are same thing. ठीक है? RP बोल लो या PR बोल दो. PR लिख लो इसको भी. PR is your 24 square. Now find the value of it. RQ square is equals to your 10 tens are 100 plus 10 tens are 100 क्यों किया हमने पता है ना. Because to find the square find करना means 10 को 2 times multiply करना. 10 multiply 10. ऐसे ही अब 24 का square find करना है तो 24 को 2 times multiply करना है. ठीक है, इसका ये मतलब है. तो करो 24 को 2 times multiply. What you will get? 576. Now add on these. RQ square is equals to 100 plus 576 will give you 676. Now to find the value of RQ, what you will do? आता है कैसे करेंगे अब इससे हम RQ की वैल्यू फाइंड. RQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 676 हमारा किसका स्क्वायर होता है. देखो चेक करो कि 676 किसी का स्क्वायर होता है. चेक इट आउट. सो आपका जो 676 होता है ये 26 का स्क्वायर होता है. जब हम 26 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 676 आएगा. क्लियर? सो वी गेट RQ is equals to RQ square equals to 26 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, and your RQ will be equal to 26 centimeter. क्लियर? स्टूडेंट्स, पाइथागोरस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 to 30 तक नंबर्स के स्क्वायर्स का पता होना चाहिए. 1 to 30 नहीं तो 1 to 20 तक तो आपको सबका स्क्वायर टिप्स पर होना चाहिए. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? दैट इज 4. 3 स्क्वायर 9. 4 स्क्वायर 16.
16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49. ठीक है, स्क्वायर का मतलब यही होता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देना. 7 7 जा 49, 8 square 8 8 जा 64, 9 square 9 9 जा 81, 11 square 11 multiply 11, that is your 121, 12 144, 13 169. So this is the way you have to, मतलब 20 तक तो टिप्स पर कर लो स्क्वायर्स. ठीक है, इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है. अब ये जनरली जो आते हैं 25 का कॉमन है बहुत, कि 625, 25 का मतलब मिलता जुलता आपको किसी क्वेश्चन में मिल ही जाएगा. 25 का स्क्वायर 13 का मिल जाता है, 12 का, 10 तक तो जनरली कुछ भी आ सकता है, वो तो टिप्स पर होते हैं, लेकिन 20 तक आपके होने चाहिए टिप्स पर. ठीक है, अब जैसे 26 का आ गया, 24 का हमारा क्या था, 24 का 576 होता है और 26 का 676. ठीक है, तो लर्न करना इजी है, राइट. एंड 25 का 625. सो यू हैव टू लर्न देम अप टू 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. और अगर एक बार आपको याद हो जाएंगे ना स्क्वायर्स, फिर आपको वो याद ही रहेंगे, आप भूलोगे नहीं. जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके माइंड में एकदम से आएगा कि ओ इसका स्क्वायर तो मुझे याद है, इसका तो मैंने याद कर रखा है, मुझे याद था, आई हैव डन इट. क्लियर. और अगर नहीं लर्न होते तो मल्टीप्लाई करके देखो फिर उसे. क्लियर. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. ABC is a triangle, right angled at C. If AB is 25, again the same question, similar question है. ABC is a triangle, right angled at C. अब उससे बोल दिया कि triangle जो है it is right angled at C. तो हम right angle जहाँ बन रहा है उस vertex को C नेम देते हैं और AB को adjust कर देते हैं. Right, हमने ऐसे दे दिया A, B and C. So now what is given? AB is 25. AB is your 25 centimeter. Next, AC is 7 centimeter. AC is 7 centimeter. You have to find BC. ठीक है, फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम. AB गिवन है, अब हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें 25 centimeter and AC is 7 centimeter. You have to find BC. लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर will be equals to AC square plus BC square. करो सॉल्व. AB की वैल्यू 25 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ AC 7 स्क्वायर plus BC you have to find. So 25 जा 625, 7 7 जा 49 plus BC square. क्या करोगे, 49 को इधर शिफ्ट कर दो to calculate BC. So BC square will be equals to 625 minus 49. Now BC square is, minus करो 15 minus 9. Your 6. Next, 11 minus 4 is your, जो माइनस करके आएगा फिर उसका आपको स्क्वायर भी आना चाहिए. So we will get 576. अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 576 का स्क्वायर किया. 576 किसका स्क्वायर होता है? It's the square of 24. So BC square will be equal to 24 का स्क्वायर and स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. BC will be equal to 24 centimeter. Clear? See the next question number 3. A 15-meter long ladder. A 15
है फ्रॉम द ग्राउंड, एक लैडर है, लैडर क्या होती है, सीढ़ी होती है, स्टेप्स होते हैं जिस पर बने हुए, सो दैट लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, आपको फिगर बनी भी हुई है बुक में, एंड हाइट उसकी कितनी है 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, you have to find the distance of the foot of the ladder from this wall, ये wall आपको लेंथ दी हुई है 12 मीटर and this is your 15 meter, you have to find the length of foot of ladder from this wall, so क्या find करना है आपने, this base, hypotenuse given, perpendicular given, so apply कर दो theorem, कैसे apply करते हैं, 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज योर 225, 12 स्क्वायर 144 प्लस a स्क्वायर निकालना है तो इसको शिफ्ट कर दो, 225 माइनस 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 इज योर 8, so a स्क्वायर आ गया आपका 81, अब 81 किसका स्क्वायर होता है, इट्स द स्क्वायर ऑफ 9, 9 9s are 81, so आपकी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9, a is equal to 9 मीटर, clear? Next question number 4, which of the following can be the sides of a right angle triangle? अब आपको फिगर गिवन है, आपने बताना है कि और सॉरी वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू टेल दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, यही पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे तीनों में, जिसमें आपकी इक्वल आ जाएंगी वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द लेग्स ऑफ द स्क्वायर्स, देन दैट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स। 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अप्लाई करो इसमें प्रॉपर्टी, टू 2.5 का स्क्वायर फाइंड करो, क्या होता है 2.5 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो पॉइंट है तो 6.25 सेंटीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट 6.5 का स्क्वायर फाइंड करो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6.5, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 31 32, 6 5 are 30, so it's your 4225, लेकिन डेसिमल है ना तो बीच में डेसिमल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 6 का स्क्वायर, 6 6 36 सेंटीमीटर। अब फाइंड करो इसको, देखो किन्हीं दो को प्लस करके हमारा थर्ड साइड आता है, किन्हीं दो साइड्स को प्लस करके थर्ड साइड आएगा, क्योंकि हमने तीनों का स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब सपोज हमारा सबसे बिगर नंबर ये है ना, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 42.25 इक्वल्स टू 36 प्लस स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं इसलिए हम सीधा वैल्यू लिख रहे हैं, b is your 30, sorry p is your 6.25 and b is your 36, करो ऐड 6.25 को 36 से 42.25 आ गया आपका, यहाँ भी 42.25 था और इधर भी आ गया 42.25, hence these are the sides of your right angle triangle, hence these are the sides of right angle triangle।
क्लियर? ऐसे ही दो पार्ट्स और हैं, वो करोगे आप। पहले तीनों का स्क्वायर फाइंड कर दोगे, फिर जो बिगर स्क्वायर आएगा उसको हाइपोटेन्यूज मान लोगे, ठीक है? और बाकियों का सम देखोगे फाइंड करके कि उसके इक्वल आ रहा है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। Now, a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. See here. Question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. Suppose this is the ground level. एक tree जो है, suppose this is the length of a tree, और वो tree से टूटा है कितनी हाइट पे? 5 मीटर की हाइट पे। Suppose यहाँ से tree टूटा and it touches the ground level, और ground level को touch कर रहा है, इस तरीके से touch कर रहा है at a distance of 12 meter from the base of the ground. Means ये जो distance है ये 12 मीटर है। क्यों? क्योंकि when the tree broke, its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. ये बेस था ना ट्री का, और जब ट्री टूटा ऊपर से, यहाँ से टूटा, तो ये ट्री का जो टॉप था वो ऐसे नीचे गिरा कि जो उसकी लेंथ है बेस ऑफ द ट्री से वो 12 मीटर है। सो दिस इज योर 12 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। आपने ओरिजिनल हाइट बतानी है ट्री की। ये 5 मीटर हाइट जो आपको गिवन है, दिस इज योर व्हाट वी कैन से, ये तो आपकी उतनी आपको वो हाइट बताई है जिस हाइट से ट्री टूटा है, ठीक है? जैसे ये ट्री था ना, ये पूरा ट्री है यहाँ तक, यहाँ से ट्री टूट गया, ठीक है? 5 मीटर की हाइट से ट्री टूटकर नीचे गिर गया एंड यू हैव टू टेल द ओरिजिनल हाइट। मतलब आपने ओरिजिनल मतलब जितनी हाइट थी ना ट्री की वो बतानी है आपने। क्लियर? सो पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेट अस फाइंड द हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये 5 मीटर तो इतना है ना, और ऊपर से जितना टूटा है वो टूट कर ऐसे गिरा है यहाँ तक। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो सारा टूटा हुआ ट्री है। इट्स द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है? तो हम ये वाली हाइट को और हाइपोटेन्यूज को प्लस करके निकाल सकते हैं ओरिजिनल हाइट। अब उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? सो फाइंड आउट x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25. Now x square equals to 144 plus 25 is your 169. अब 169 किसका स्क्वायर होता है? It's the square of 13. So x square equals to 13 का स्क्वायर, h equals to 13 सेंटीमीटर। क्लियर? Now 13 सेंटीमीटर आपकी हाइपोटेन्यूज की हाइट आ गई। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कितनी बनेगी? ये हाइट जो आई ये टूटे हुए ट्री की आई। सो इट्स योर 13 ओरिजिनल हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, दैट इज योर 18 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. अब इसमें PQ square plus QR square equals to RP square. जो ट्राइंगल बनी है इसमें it's like this. ऐसे बनी है, ठीक है? This is your 65 degree and this is your 25 degree. P, Q and R. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा इसमें ये राइट एंगल है, ठीक है? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40 cm and a diagonal is 41. Now length कितनी है? Length is 40, diagonal is 41 cm. You have to find the perimeter of this rectangle. अब इस rectangle का perimeter, suppose हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C, D. You have to find the perimeter of this rectangle. Perimeter क्या होता है? Sum of its sides. अभी हमें सिर्फ length पता है, breadth तो पता ही नहीं है ना, ठीक है, और एक diagonal पता है हमें, ठीक है. अब हमें पता है जो रेक्टेंगल होती है उसके चारों कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, बिकॉज ऑल ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री बनता है. तो अब ये 90 डिग्री है, मीन्स इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, राइट ना. सो हम लगा देते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? BD स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर? पुट करो वैल्यूज. BD कितना है? 41 का स्क्वायर, DC 40 स्क्वायर एंड BC इज योर breadth which you have to find. क्लियर? अब फाइंड करो 41 का स्क्वायर. इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स तो हमें फाइंड करके देखने ही पड़ते हैं. It's 1681. 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600. 4 का कर लो स्क्वायर और 2 जीरोस लगा दो साथ में. BC स्क्वायर. अब ये निकालने के लिए इसको माइनस करो इधर ले जाके. तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 1681 माइनस 1600. यू विल गेट BC स्क्वायर इक्वल्स टू 81. अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9. सो द वैल्यू ऑफ BC इज 9. क्लियर? नाउ अब हमें ये पता चल गई 9. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर. क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज योर 40, ब्रेड्थ हमने निकाली 9. So 2 multiplied by 49, that is 2 9 by 18, 2 4 by 98 centimeter. Clear? समझ में आया? Now last question, the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. अब आपको diagonals का measure given है, perimeter निकालना है rhombus का. हो जाएगा. जो आपकी rhombus होती है फिगर, बता देती हूँ कैसे करना है. यू विल डू इट योरसेल्फ. सारे तो मैंने करा दिए ना. जो इसके डायगोनल्स हैं, व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. वन इज योर 16 सेंटीमीटर एंड द अनदर वन इज योर 30 सेंटीमीटर. ठीक है. So what you have to find? You have to find the perimeter. Perimeter by sum of all sides होगा. तो अब हमें ये पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो अगर हम एक साइड निकाल लेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा हमारा. ठीक है. और जो सेंटर पे एंगल बनता है, लाइक ऐसे रोम्बस होती है ना, स्क्वायर की तरह होती है. ठीक है. तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा. अब ये पूरी 16 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा?
8 सेंटीमीटर, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 8 और 15 दो चीजें हमें पता चल गई। यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, मीन्स हमें एक साइड पता चल गई और फिर हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। क्लियर? वेरी इजी हो जाएगा। So we are completed with this chapter. We have done this chapter number 6. Complete your notebook neatly. And in the next video, we will start chapter 7, congruency of the triangles. Thank you.